Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, we are going to continue with our topic of arrays. And the last time we discussed about one-dimensional array, and we discussed their how to initialize them, how to manipulate them, how to pass them to functions. So we'll continue with that, and now we are going to deal with two-dimensional arrays. So basically, this is equivalent to the matrices. So in C++, actually the array can only be one-dimensional. However, the two-dimensional array is basically a gimmick to show how a matrix is represented, but actually it is represented in single dimension. We will see how that works. For a user, you will feel that you are dealing with two-dimensional array, you are dealing with a matrix, but internally C++ is storing it as a 1D array. So let's look at this. A 2D array or multidimensional array are multiple subscripted arrays. So multiple subscripts, table with rows, columns, just like matrices. First you specify the row and then the column. So if you have an array A, then you want to access the first element, you will use A00. 0. So row number 0, column number 0. If you recall, we have mentioned several times that in C++ an array index starts with 0 instead of 1. So the first element is placed at position number 0. That is the syntax of C++. So the first element or first row, first column is A of 0, 0. And then the first column of the second column of the first row is A01. And the third column of the first row is A02, and so on. And when you move to the second column, it becomes A10, A11, A12, A13, and so on. So the first element is the row and the second element is the column. So here we have written A is the name of the array, 2 is the row subscript, and 1 is the column subscript. So the way to initialize is if in the 1D array you only used this to initialize the arrays. So if you wanted to initialize a 1D array, you would have just written this part. So here every row will be written as a separate collection in its braces, comma, and the second row. So 1, 2 becomes the first row, 1 and 2. And 3, 4 becomes the second row, 3 and 4. So row wise you are writing the element and they are separated with the comma. And of course you have the braces at the beginning and at the end. So here what we see is B is the name of the array, the 2D array. And as we said that the name of an array is basically the starting location of that array. So basically B points to this location. And then we have two dimensions, the first dimension over here and the second dimension over here. So what this means is that B is an array that is going to be subscripted by two indices. So it is of size 2 and 2. What are the what are the indices of this? So the first there are two rows. And what will be the row? This will be row number 0, this will be row number 1. Similarly, there are two columns. This will be column number 0 and this will be column number 1. So element 1 will be at B of 0, 0. This is the first element over here. And so on, just like we have seen in this description of the array. So initializers are grouped by row in braces. If you write B to 2, but you instead of initializing the entire row, you initialize just one element of the first row. You see these braces starting from here up till here. This signifies the element of the first row. Now the problem is that the row has two elements, however you have given only one. So the first element will be placed over here and the second is
0, and so on. Similarly, here you have both the elements, so therefore there is no issue, and you have 3 and 4 as it should be. So there is no issue in this case. So there are two ways of initializing this. You can also, for instance, write a loop. So if I wanted to initialize this, and I don't want to enter 1 2 3 4, instead I want the user to enter the values, I could have simply written int b 2 2 and for int I equal to 0, I is less than 2, not equal to but less than 2, I plus plus. And the reason is less than 2 because only 0 1 are the indices, 2 is the size but not the index. So this is for the first row. For every row we have to go to every column, therefore we'll use a nested loop. So for int j equal to 0, j is less than 2 and j plus plus. And what to do? C in B ith row jth column. So अगर आपने यूजर से C in करवाना है तो इस तरह होगा. This 2 is the size of the row, this 2 is the size of the column. It just happens that it is a square matrix. Otherwise I less than rows, j less than columns, and you can input it from the user. So the array is subscripted like a normal array with squared brackets, and it will output the value of 0 in this case. However, you cannot reference is using the brackets because this kind of a bracket is reserved for functions. So if you write b of 0 1, it will try to call a function b with two parameters 0 and 1, which is going to cause an error because b was not a function. B is not a function, b is a matrix. So to access a matrix you have to use the square brackets. If you use this kind of brackets, you are going to get an error message, and the reason for that is C++ compiler will assume that you are calling the function b which has two parameters as input, 0 and 1. So the representation, as I said earlier, is that even though you have a matrix, it is actually an array. So once you write int num34, so this is a 2D array called num. It has 3 rows and 4 columns. So 3 rows, naturally the indices of those rows will be 0, 1 and 2, and 4 columns, the indices will be 0, 1, 2 and 3. However, in the memory this is how it is allocated. So you see there is a 1D array, and the first 4, because you have written 3 and 4, so by 4 it knows that after every 4th element it's going to break into a second row, because you have written 4 over here. So 1 2 3 4 break, 1 2 3 4 break, 1 2 3 4. That is how it allocates the rows and columns. But the address are continuous because an array is a contiguous or a continuous location of memory. So this is just an example. For instance, जो आपके वैल्यू है यहाँ पे num जो आपने allocate किया है, इसमें what is num? Num is the name of the array. So we said that the name of the array is always the starting location. So this location, and therefore it's going to have the address 1000, but the value here is 1. So memory location is this, the value in that location is this. This is just like saying who lives in this house. So if I live in a house, if you say who are the occupant of this house, then I will be the occupant, but the house itself will have an address. So maybe it's house number 123, street number 567. So this is the address where that value is. However, the occupant will be me. So the value here is the 1 2 3 4 values you have given, but they have address. So what's important here is you can see that
1000, 1002, 1004, you see also that there is a difference of 2 exactly. So 02, then 04, then 06, then 08, and the reason being that you are using a 2 byte integer. So 2 बाइट्स का आपके पास इंटीजर है, जो क्योंकि इंट टाइप का आपने स्पेसिफाई किया हुआ है, ये 2 बाइट का अगर आपने यूज किया है तो इसलिए 2 के गैप से आपको ये एड्रेसेस नजर आ रहे हैं। और ये वही है जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि जी आप एक स्ट्रीट में हैं यहाँ पे, और पहला मकान अगर यहाँ पे लेट से 160 है, तो उसके बाद आपको पता है कि जी अगर ये 40 फुट के इनके फ्रंट्स हैं, तो 40 फुट आप जैसे ही क्रॉस करेंगे तो 161 आ जाएगा, और फुट 161 आ जाएगा, और अनदर 40 फुट आप क्रॉस करेंगे तो फिर 162 स्टार्ट हो जाएगा, और अनदर 40 फुट आप क्रॉस करेंगे तो 163 आ जाएगा, एंड सो ऑन। सो इस तरह ये भी इंडेक्स हो रहे हैं। So the values are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. This is how they are represented. Actually, it is a single array. So once you, for instance, once you want to access this here, so basically आप इसको किस तरह access करेंगे? This is the first element of the second row. तो आपने इस वैल्यू को इंडेक्स करना है अगर, तो you will write num of second row. So this is row 1, the second row and the first column. So second row and first column. तो मैं क्या सेकंड रो लिख बन रहा हूँ, उसकी रीजन ये है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 जो है वो सेकंड बनता है। So once you do this, what it will do is it's going to write, okay, start with 1000. So 1000 is the starting location, plus 4 is the size of the column. So this is going to be 1000 plus 4 and multiplied by it is integer, so size of an integer is 2. This 4 into 8, इतने आपके पास आपने स्किप करने हैं, और जो नेक्स्ट वैल्यू आएगी उसके बाद वो आपने रीड करनी है। So this is going to be 1000 plus 8, so this is going to be 1008. This is what you see over here. So that is how it indexes the values inside a 2-dimensional array. So let's look at an example how you actually use it, how you manipulate it, how you pass it to functions. So in the case of an array, we also discussed in the last lecture that the size of the array has to be fixed. So either you write a number or you initialize it as a constant, because the size cannot change. If it's a variable, then the variable values can change over time. However, the size of an array cannot change because you have to reserve the location of memories pre-hand before you start the program. So here is an example in which I have a 2-dimensional array called student grades, and it has students number of rows. यहाँ पे कहीं define हुआ होगा कि students क्या हैं, और exam number of columns. ठीक है, यहाँ पे हमने इनको वो करना होगा, और उसके बाद हम देखेंगे कि ये किस तरह इसमें हम करते हैं. So here we see that we have multiple functions. The first function is finding the person with the minimum number, then finding the person with the maximum value, or the maximum grade, so, or the maximum marks, I can say, then the average, and then one function just to print the array. तो एक 2-dimensional array को प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन है, एक उसमें से एवरेज निकालने के लिए है, एक इसमें से मिन, एक इसमें से मैक्स. सो यहाँ पे जो हमने ये फंक्शन, जिस तरह आपको पता है कि पहले हम प्रोटोटाइप्स डिफाइन करते हैं. आमतौर पे कन्वेंशन ये है, आप पूरा फंक्शन यहाँ पहले डिफाइन कर सकते हैं. कन्वेंशन ये है कि आप सिर्फ सिग्नेचर जो है प्रोटोटाइप वो पहले डिफाइन करते हैं, मेन करते हैं, और फंक्शन की डिटेल्स जो है, फंक्शन काम किस तरह करता है, वो मेन के बाद आता है. दिस इज जस्ट द कन्वेंशन. इफ यू डोंट वांट टू फॉलो इट, देन आप यहाँ पे डायरेक्टली इस सेमीकोलन के बजाय ब्रैकेट स्टार्ट करें और पूरा फंक्शन ही लिख दें यहाँ पे, वो भी हो सकता है.
सो यहाँ पे जो है वो हम एज्यूम करें कि जी स्टूडेंट्स और एग्ज़ाम जो है ये वैल्यू आपको दी हुई हैं और दे आर कांस्टेंट। इनफैक्ट एग्ज़ाम तो यहाँ पे डिफाइन हुआ है आपके पास कि ये क्या है, और ये 4 आपने इसको इनिशियलाइज करिए। दिस इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। सो यहाँ पे आपने इसमें जो पहला काम किया है वो यहाँ पे आपने स्टूडेंट्स और एग्ज़ाम्स करके यहाँ पे इसको इनिशियलाइज भी करा दिया, और उसके बाद आपने प्रिंट एरे का फंक्शन कॉल कर लिया। यहाँ पे आप देखें जो फंक्शन है उसमें, प्रिंट एरे का फंक्शन है उसमें एरे 2D एरे पास किस तरह होती है। इंट अगर जो नाम होगा वो आएगा, लेकिन वो एक्चुअल जब डिफाइन हो रहा होगा तब आ रहा होगा, प्रोटोटाइप में नाम की जरूरत नहीं है। सो इंट होगा और 2 स्क्वायर ब्रैकेट्स होंगे। इसमें कंडीशन ये है कि सेकंड जो है उसका साइज आपने लाजमी स्पेसिफाई करना है। सो यहाँ पे एग्जाम्स जो है जो कि साइज 4 था वो स्पेसिफाई करना लाजमी है। पहले वाले को आप करें या ना करें दैट डज नॉट मैटर, आपने उसका साइज यहाँ पे पास करना होगा क्योंकि आपने लूप लगाना है कि मैंने कितनी रोज तक जाना है। लेकिन सेकंड वाला जब भी आप 2D एरे पास करते हैं उसका फर्स्ट के अलावा बाकी जितने भी हैं, हो सकता है 3D एरे भी हम कर सकते हैं, बना सकते हैं 3 डायमेंशनल एरे, और अगर एक से ज़्यादा जिसमें भी बनाएंगे आपको तो आप पहले को छोड़ के बाकियों को आपका साइज पास करना लाजमी होगा। सो दिस इज द पासिंग ऑफ द एरे एंड द 2 इंट्स हियर आर गोइंग टू बी द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। बेसिकली कॉलम्स जो हैं वो ये एग्जाम साइज के ही होंगे। सो लेट्स लुक एट, उसके बाद फिर ये आप मिनिमम यहाँ पे ये फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, आप मिनिमम का फंक्शन है वो हम देखें किस तरह डिफाइन होगा। आगे जाके आप उसको मैक्सिमम कॉल करते हैं वो भी हम देखेंगे किस तरह डिफाइन होगा, और एवरेज कैलकुलेट करें। यहाँ पे वही पिछली दफ़ा की तरह जहाँ पे हमने सेट डब्ल्यू किया था आउटपुट करने के लिए, तो यहाँ पे भी कुछ प्री डिफाइंड C++ की एग्जिस्टिंग फंक्शंस यूज हो रहे हैं। ये सारे फंक्शंस C++ में डिफाइंड हैं। set iOS flag, set precision. Set precision is basically saying that you have to output a precision of 2. So अगर 20 है, 20.333 है तो आखिरी वाला 3 स्किप कर जाएगा, 20.33 प्रिंट करेगा। तो आप नंबर ऑफ इसकी प्रिसीजन बता रहे हैं कि कितनी इसकी वैल्यूज आनी चाहिए। और यहाँ पे आप बता रहे हैं कि जी फिक्स्ड नोटेशन पे आप जाना चाहते हैं, set iOS flags। ये आप फंक्शन यूज कर सकते हैं डिस्प्ले को फॉर्मेट करने के लिए कि आपका डिस्प्ले किस तरह आए। इफ़ यू आर यूजिंग iOS फिक्स्ड एंड iOS शो पॉइंट, सो फिक्स्ड का मतलब ये है कि आप जो इंटीजर वैल्यू है वो फिक्स्ड में जा रहे हैं और डेसिमल के बाद आप जो वैल्यूज है वो शो करेंगे, और उसके बाद आपने सेट प्रिसीजन 2 कर दिया। पर this is not very important, it's just a matter of syntax. If you want to use it you can, if you don't want to use it you can forget about it. The important thing is कि एवरेज, मैक्सिमम और पिछले पेज पे हमने देखा था यहाँ पे ये मिनिमम, ये किस तरह कैलकुलेट होने। These are the important parts. So in all these यहाँ पे आप देखें तो पहले जो है वो एरे पास की गई है और हर दफ़ा में जो है वो सेकेंड जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो पास की गई, एग्जैक्ट बताया गया है किस साइज का है ये। सो या एग्जाम यहाँ पे करके मैं कर दूँ, या एग्जाम की बजाय अगर मैं चाहता हूँ तो डायरेक्टली यहाँ पे 4 लिख सकता हूँ। That was also possible. So let's look at the first one. यहाँ पे आप देखें तो जो मैंने आपसे पहले बात बताई थी कि जी आपके पास यहाँ पे आप मिनिमम है जहाँ पे आप सिग्नेचर या प्रोटोटाइप बता रहे हैं, आपने बता दिया सिर्फ एक इंटीजर एरे होगी 2 डायमेंशनल, उसका नाम क्या होगा ये नहीं पता। जब आप डिफाइन करेंगे तो उस वक्त आप बता रहे हैं कि जी उस एरे का नाम मैंने रखा है ग्रेड्स, उस एरे का नाम होगा ग्रेड्स, और उसके कॉलम साइज जो है वो एग्जाम्स होगा। उसके बाद आप पहले ये दिस इज द नंबर ऑफ रोज, दिस इज कन्वेंशन रोज एंड दिस इज कॉलम्स, या बाई कन्वेंशन जो है वो पास करते हैं। ये मैंडेटरी है, अगर आपने पास करना है तो ये वाला, ये बाई कन्वेंशन आप कर रहे हैं ताकि आपको पता हो कि आपने जो लूप लगाना है वो किस साइज का लगाना है। ये मैंडेटरी है पास करना। यहाँ पे देखिए हमने एम्प्टी छोड़ा हुआ है, तो ये सिंटेक्स का हिस्सा है। ये एग्जाम्स यहाँ पे या जो भी साइज 4 था ये पास करना लाजमी था। ये जो है ये मेरी मर्जी थी, मैंने पास किया और इसलिए किया ताकि मैं लूप लगा सकूं। यहाँ पे पहला लूप पीपल तक चल रहा है, दूसरा लूप टेक्स्ट तक चल रहा है। ये मैंने अपने तौर पे किए हैं, पैरामीटर्स पास किए। सो आई वांट टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। सो
व्हाट आई कैन डू इज आई कैन अस्यूम माई जो मिनिमम वैल्यू है वो मैं एक वेरिएबल लो ग्रेड के नाम से मैंने डिफाइन कर दिया, उसमें मैं मिनिमम वैल्यू स्टोर करूंगा। अब मुझे पता कैसे चलेगा मिनिमम वैल्यू कौन सी है, तो मैं जो भी इस वक्त मैक्सिमम हो सकती थी वैल्यू उससे मैंने इसको असाइन कर दिया, ताकि अगर कोई मिनिमम आए तो मैं रिप्लेस करता रहूँ। तो वो एक लूप लगेगा और जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो उससे मैं रिप्लेस कर दूंगा। इसके एग्जांपल मैं इस तरह आपको दिखा सकता हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास नंबर्स जो हैं वो इस तरह हो, 86 है, 85 है और 90 चला जाता है, फिर 2 आता है, फिर 6 चला जाता है एंड सो ऑन। सो आई वांट कि जी मेरे पास मिनिमम वैल्यू आए, तो मैं यहाँ पे लो ग्रेड इक्वल टू 100 सेट कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसमें आऊँगा, ये चेक करूँगा इज 86 लेस देन 100, द आंसर इज यस, देन आई विल रिप्लेस लो ग्रेड बाई 86। 86 आ गया। फिर मैं नेक्स्ट पे गया, 85 इज इट लेस देन एग्जिस्टिंग लो ग्रेड जो कि अब तक था, अभी तक हमने सिर्फ ये देखा था 86 था। इज इट लेस, यस इट इज लेस, इसको कैंसिल करो, यहाँ पे 85 स्टोर कर दो, ये भी हो गया। नेक्स्ट पे जाए, 90 is it lower than 85, no, forget about it, don't replace it, move on to the next. 2 is it less than 85, yes, upgrade the low grade to this value 2 or move on to the next. 6 is it less than 2, no, forget about it, इसको भी forget, इसको भी कुछ नहीं होगा, इसकी वजह से भी कुछ नहीं होगा। तो ये इस तरीके से मिनिमम कैलकुलेट होता है। So because it's a 2D array, I have to write the first loop for the rows and the second loop for the columns, and it is nested. हर रो के लिए मुझे सारे कॉलम्स एक्सप्लोर करने हैं, that is why it is a nested loop. So first for all I equal to 0, I is less than pupils. Pupils is what? The number of rows. यहाँ से हमारे पास आए हैं। For int j equal to 0, j is less than test. Test क्या चीज़ है? जो आपने कॉलम्स भेजे थे। और यहाँ पे आप उसको देख सकते हैं कि जो आपने मिनिमम कॉल किया था, तो ये स्टूडेंट्स और एग्जाम्स आपने भेजे थे। ये स्टूडेंट्स रोज थी, एग्जाम्स कॉलम्स थे। तो ये एरे रोज और कॉलम्स इस साइड से इस तरह से आ रहे हैं। सो ये वही मतलब काम किया मैंने यहाँ पे। इफ ग्रेड्स ऑफ आई जे, यानी जो हम वैल्यू चेक कर रहे हैं इस वक्त, इफ दिस वैल्यू इज लेस देन जो लो ग्रेड मेरे पास 100 था, इफ इट इज ट्रू, लो ग्रेड में ये जो वैल्यू है ये प्लेस कर दो, जो सर हमने 86 प्लेस की थी यहाँ पे, और ये लूप चलता रहेगा। फॉर लूप है, नेस्टेड फॉर लूप है, ये चलता रहेगा फॉर ईच रो एंड फॉर ईच कॉलम। तो पूरा का पूरा मैट्रिक्स ट्रेवर्स करेगा, और उसके बाद आखिर में आपके पास जो लो ग्रेड था उसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू आपके पास पड़ी हुई होगी, वो आप रिटर्न करा देंगे यहाँ पे। और इसी को आप चेंज करके मैक्स ग्रेटर देन कर दें और लो ग्रेड को 100 के बजाय 0 से स्टार्ट कर दें, तो जो भी चीज़ 0 से ऊपर होगी वो रिप्लेस होती रहेगी। तो इसको आप यहाँ पे ग्रेटर देन कर दें और इसकी जगह आप 0 कर दें, तो यही फंक्शन जो है वो मिन की बजाय मैक्स का फंक्शन बन जाएगा, जो कि यहाँ पे हुआ हुआ है। सो यहाँ पे हुआ ये ग्रेटर देन है और इसको रिप्लेस कर देंगे, एंड जो भी वैल्यू आएगी वो आपको हाई ग्रेड में आ जाएगी और आप उसकी चीज़ को रिटर्न कर देंगे। Anyway, the objective of this course is all of you know how to calculate min and max. I don't need to teach you कि जी min max किस तरह कैलकुलेट कर रहे हैं। हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है वो ये है कि एरे किस तरह पास होती है, 2D एरे किस तरह पास होती है। तो 2D एरे में आपने पास करना है इंट, नाम देना है पहले ब्रैकेट्स में, अगर आप दे दें तब भी ठीक है, ना दें तब भी ठीक है। अगर मैं यहाँ पे दे देता कि ये प्यूपिल्स या स्टूडेंट्स थे वहाँ पे, तो तब भी ठीक था मेरे पास, या मैं आई डोंट नो व्हाट्स द साइज ऑफ द एरे, इट इज़ 3/4। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह, यानी इसकी जगह 3 दे दूँ, इसकी जगह 4 दे दूँ, तब भी ठीक है। लेकिन इसका देना लाजमी नहीं है, दिस इज़ ऑप्शनल, दिस इज़ मैंडेटरी। ये वाला जो है सेकंड, ये देना मैंडेटरी है, फर्स्ट वाला ऑप्शनल है। और वो क्यों है वो हम यहाँ पे ये देख चुके हैं कि जब तक आपको पता नहीं होगा साइज क्या है, आप ये चीज़ें कैलकुलेट नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई द नंबर ऑफ कॉलम्स इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू गिव, ताकि पता चले जब नेक्स्ट रो है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, नेक्स्ट रो कहाँ से स्टार्ट होगी। इसके लिए जो है वो ये मैंडेटरी होता है देना। सो हमारा मकसद जो है वो इसका सिंटेक्स सीखना है कि जी 2D एरे पास किस तरह करते हैं, मिन मैक्स किस तरह निकालना है, ये इजी पार्ट है, ये तो आप कर ही लेंगे। अरे कोड लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर किसी को ना समझ आ रही हो तो। So the
थर्ड फंक्शन वाज अबाउट कैलकुलेटिंग द एवरेज, सो दैट्स आल्सो द सेम थिंग। आपने क्या किया, सेट ऑफ ग्रेड्स लिए आपने यहाँ पे और इंट टेस्ट पास किया और यहाँ पे लूप लगाया आपने और टोटल को सम कर दिया। उसके बाद आपने टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टेस्ट जो है वो रिटर्न कर दिया एवरेज। बेसिकली you summed all the values and then you returned divided by the size. So total आपके पास 0 था और आपने लूप लगाया और लूप में टोटल में ऐड करते रहे। आखिर में आपके पास सारा कुछ ऐड हो गया। नंबर कितना था, टेस्ट था, इतना लूप लगाया था आपने। तो जो सम हुआ डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वो आपने किया। एंड वी नो व्हाट दिस स्टैटिक कास्टिंग इज। कास्टिंग हम क्यों करते हैं, ताकि वरना क्या होता है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, डेसिमल वैल्यू जो है वो स्किप हो जाएगा इसका। वी हैव सीन दिस बिफोर। इफ यू राइट 5 डिवाइडेड बाय 2 सो द आंसर वुड बी 2 इंस्टेड ऑफ 2.5 एंड द रीजन बीइंग कि जो कैलकुलेट होगा वो इंटीजर में डेसिमल नहीं स्टोर हो सकता। ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो इसके लिए आपने पहले इसको डबल में स्टैटिक कास्ट कर लिया था कि जी टेम्परेरी में टोटल डबल बन जाए। इसका मतलब ये अगर फर्ज करें टोटल 5 था और नंबर ऑफ टेस्ट 2 थे, तो टेम्परेरी ये 5 जो है इसको 5.0 बनाओ, डिवाइडेड बाई 2 करो। तो अब जो है वो ये डबल है, ये इंटीजर है, तो जो रिजल्ट आएगा वो हायर जो है, डबल इसका साइज ज़्यादा होता है, तो ये 2.5 आएगा। दैट इज़ वाई यू आर डूइंग द static casting. We have done that in our previous lectures before the midterm. You know what casting is, typecasting is. We discussed in class and we did several examples of it. It's also in your slides. So the last of the function is the print array function. Again you are passing the grade as a 2D array, the number of rows and the number of columns. उसके बाद आपने, अब आपको पता चल जाएगा कि हमने वो जो सेट प्रिसीजन और वो सेट iOS फ्लैग्स क्या किए थे वो दोबारा भी आ गए यहाँ पे। तो ये सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए है, इसका और कोई मकसद नहीं है। आपको चाहते हैं कि ये बिल्कुल जो कॉलम के नीचे जो चीज़ है वो इसी तरह है। सो कॉलम नंबर 1 2 3 आपने मेंशन कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको आउटपुट किया और फॉर ईच रो आपने जो है वो उसके जे वैल्यूज आउटपुट कर दिए हैं। लेफ्ट अलाइन किया है और 5 की विड्थ दी है उसको, यानी 5 के गैप्स देने के बाद ये लिखा जाएगा। सो जस्ट यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे 0 1 2 3 यहाँ पे है और ये गैप्स नज़र आ रहे हैं। ये जो गैप्स नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे, ये बेसिकली ये सेट W5 और लेफ्ट अलाइन हुआ है, यानी चीज़ें लेफ्ट अलाइन होंगी। This is what this is, but I'm not going to go into a lot of details because this is just formatting techniques. You can, if you want, you can use it. If you don't want, you don't have to use it. लेकिन आपके पास जो है वो यहाँ से ब्रैकेट स्टार्ट हुआ तो ये नेस्टेड लूप है। ये लूप जो है वो इसका हिस्सा है। रीजन बीइंग द बेस स्टार्ट्स ओवर हियर एंड एंड्स ओवर हियर। सो फ्रॉम हियर टू हियर इट इज द फर्स्ट फॉर लूप ऑफ फॉर आई एंड दिस इज अ सिंगल स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आ रहा, एक सिंगल स्टेटमेंट जा रही है, यहाँ पे सेमीकोलन है। तो ये एक सिंगल स्टेटमेंट है जो कि इस सेकंड फॉर के साथ है एंड दैट इज जस्ट टू प्रिंट। तो आपने नेस्टेड लूप में इसको प्रिंट कर दिया। बाकी सारी ये जो सेट iOS लेफ्ट है और सेट विड्थ है ये फॉर्मेटिंग के लिए है। So here you can see that we have the 4 functions and in each of them you have the first you pass the 2D array. In the 2D array the size of the second dimension has to be specified while passing the array, and the convention is कि उसके साथ आप 2 अलग-अलग पैरामीटर्स पास करते हैं, एक उसके नंबर ऑफ रोज, एक उसके नंबर ऑफ कॉलम्स। द रीजन बीइंग ताकि उस फंक्शन में आपने लूप लगाना हो तो आपको पता हो कितनी रोज हैं, कितनी कॉलम्स हैं, आप मेमोरी एक्सीड ना करें। अगर आप मेमोरी एक्सीड करेंगे तो एरर आएगा। इन अदर वर्ड्स, अगर एक एरे जो थी ARR इसका साइज था 5 और आपने एक्सेस करने की कोशिश की एरे ऑफ 6, तो एरे ऑफ 6 तो है ही नहीं है, तो टोटल 5 है। ये 5 हैं और 0 1 2 3 4 ये इनके इंडिसेस थे। इस तरह आपने एक्सेस करने की एरे ऑफ 6 ये एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये आपके पास एरर देगा और ये रन टाइम एरर होगा। सो दिस इज अ रन टाइम error. Why?
because here it won't give you an error while you are compiling. It won't say आपने syntax ठीक लिखा है, एरे का नाम है, सबस्क्रिप्ट है, ये 1D एरे की बात करें हम, एरे का नाम है, स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, अंदर इंडेक्स दिया हुआ है, ठीक है। ये तो जब रन करेगा उसको तो उसको पता चलेगा कि जी जो इंडेक्स आप करने की कोशिश करे थे वो एरे की साइज से ज़्यादा है। तो हो सकता है आपको ये 6 के बजाय आपने यूज़र सेंटर करवाया होता आई और आप इंडेक्स ऑफ आई कर रहे होते, तो आई कभी 2 होगा, कभी 3 होगा, कभी 6 भी चला जाएगा। तो रन टाइम पे जब वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो आपको एरर देगा, और अगर आपने एरर को हैंडल नहीं किया हुआ तो आपको प्रोग्राम क्रैश कर देगा। एरर हैंडलिंग की टेक्निक्स होती हैं, हाउ यू हैंडल एन एरर। अगर कोई एरर आ जाए तो वो एरर ही सिर्फ यानी वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट ना हो बेशक, लेकिन पूरा प्रोग्राम ना क्रैश करे, दिस इज कॉल्ड एरर हैंडलिंग। फॉर दोज ऑफ यू हु विल स्टडी फर्दर कोर्सेज इन प्रोग्रामिंग यू विल लर्न दैट। फॉर द रेस्ट आई डोंट थिंक यू विल बी, or you can read it on your own. ये शायद नेक्स्ट में 1 और 2 में आपको ये बताया जाए। It's not part of this course anyway. So that is the reason we have by convention that whenever you pass an array, whether it's 1D or 2D, you also pass the dimension. एक 1D है तो 1 डायमेंशन पास करेंगे, 2D है तो 2 डायमेंशन पास करेंगे। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये चीज़ जो थी ये मैंडेटरी थी पास करनी। ये जो द वेरिएबल्स आप पास करें या आप अपने लिए कर रहे हैं ताकि आप फंक्शन में आपको पता हो कितने रोज तक जाने, कितने कॉलम्स तक जाने। दे आर नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो आपको पता नहीं आप कहाँ तक लूप लगाएंगे। अगर आप लूप में साइज से ज़्यादा चले गए तो प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। तो दिस इज बाय कन्वेंशन दैट यू पास द टू द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स. So that is about how you deal with a two-dimensional array, how you define it, how you can input it from the user. We saw it over here, how you can input it from the user, how the array is actually stored in memory, how the addresses are calculated, we saw over here, and how it is passed to functions. So I'll stop for this lecture here. In the interactive session that we'll have on Friday, I will also describe, we'll write a function together that takes two matrices M1 or MAT1 or MAT2 and then does a matrix multiplication. So we हम function जो है will leave it for the interactive session, which will be on Friday. This lecture is for your Wednesday class. So if you have any questions, you can ask me during the interactive session on Friday, or you can even ask it on using MS Teams, or even since this is going on YouTube, you can even write it in the comment section. You can ask your question there. So I hope you enjoyed this video, and inshallah we'll meet on Friday.